तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। डोनाल्ड ट्रंप को 276 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। अमेरिकी चुनाव में शानदार जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। चुनाव जीतकर इतिहास रचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने समर्थकों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए गोल्डन एज की शुरुआत है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को दोबारा से मजबूती मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका आने वाला हर पल अमेरिकी लोगों की बेहतरी के लिए समर्पित होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संबोधन में युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो युद्ध में विश्वास नहीं करते। ट्रंप ने कहा कि वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, साथ ही वो युद्ध रोकने को भी जा रहे हैं। तो विक्ट्री स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मस्क सुपर जीनियस है और उनकी मदद से अमेरिका की काफी दिक्कतों को वो दूर करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से वापसी हो रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज की है। डोनाल्ड ट्रंप को 276 इलेक्टोरल वोट मिले हैं और इस शानदार जीत के साथ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। तो इतिहास रचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को भी संबोधित किया, खासतौर पर उनका शुक्रिया अदा किया और साथ ही ये भी कहा कि अमेरिका के गोल्डन एज की शुरुआत हो रही है। अमेरिका को एक बार फिर से political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again. Uniting citizens of all backgrounds around a common core of common sense. You know, we're the party of common sense. We want to have borders. We want to have security. We want to have things be good, safe. We want great education. We want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars. 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. Together, we're going to unlock America's glorious destiny. We're going to achieve the most incredible future for our people. I think that we just witnessed the greatest political comeback in the history of the United States of America.
And under President Trump's leadership, we're never going to stop fighting for you, for your dreams, for the future of your children. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback in American history under Donald Trump's leadership. Elon, you have something called Starlink, is that right? Yes, I do. What the hell is it? He said, it's a communication system that's very good. I said, Elon, they need it really, really badly in North Carolina. Can you get it? He had that there so fast, it was incredible. So, and it was great. It saved a lot of lives. He saved a lot of lives. But he's a character, he's a special guy, he's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. We have to protect our super geniuses. I want to thank some of the guys. You know, we have up here today the U.S. Open champion. He's a fantastic golfer. He's slightly longer than me. It's a little bit longer than me. Just a little bit. Bryson DeChambeau is up here someplace. तो डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने लिखा है कि आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग की नई शुरुआत करने के लिए उत्सुक हूँ। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें। तो यूएस में अब की बार डोनाल्ड ट्रंप का जादू चला है। 7 स्विंग स्टेट में ट्रंप ने कमाल कर दिया है। ट्रंप की जीत का दुनिया पर क्या असर दिखेगा और ट्रंप की जीत के क्या अहम फैक्टर्स रहे हैं, बता रहे हैं हॉर्मस फटाकिया। अमेरिका में एक निर्णायक जीत की तरफ बढ़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप, ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा व्हाइट हाउस में, लेकिन ये कार्यकाल 4 साल के अंतराल के बाद आया है और वो अमेरिका में सिर्फ दूसरे ऐसे उम्मीदवार बने हैं जो एक अंतराल के बाद दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। पिछली दफ़ा जो उम्मीदवार राष्ट्रपति बने थे इस तरह के अंतराल के बाद, वो 1893 में ग्रोवर क्लीवलैंड जो राष्ट्रपति बने थे दूसरी बार, वो इस 132 साल के बाद इस तरह का वाक़या पहली बार अमेरिका में देखने मिल रहा है। अब क्या ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जीत में सहायता दी? वो जो हमला डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ था वो सेंटिमेंट्स को बढ़ाने में बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ, और जो उन्होंने बड़े राज्य जो जीते, फ्लोरिडा में उनकी जीत हुई, टेक्सास में उनकी जीत हुई, दोनों को इलेक्टोरल कॉलेज में 70 वोट्स दोनों को मिलाकर है, तो उससे ट्रंप को ये 270 के आंकड़े की तरफ बढ़ने में काफ़ी मदद मिली। जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स थे, जो 7 महत्वपूर्ण स्विंग स्टेट्स थे, जो कि विस्कॉन्सिन है, पेंसिल्वेनिया है, उसमें से 3 स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप की अब तक जीत घोषित हो चुकी है, जिसमें जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया है, और बाकी के जो 4 राज्य हैं उसमें रुझानों में अब भी डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। और जो ट्रंप के जो इम्पैक्ट देखने मिल रहा है ट्रंप की जीत का, वो अमेरिका के फ्यूचर्स पर देखने मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स लगभग 1200 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं इस वक्त, और जो बाकी के जो ट्रंप ट्रेड्स है उससे तो वो तो सुबह से ही इस तरह की ट्रेड्स देखने मिल रही थी। बिटकॉइन ने अपना रिकॉर्ड हाई बनाया, $75,000 के पार निकल चुका है बिटकॉइन। टेस्ला के शेयर्स, जो कि इलॉन मस्क जिसके मालिक है, इलॉन मस्क ट्रंप के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं पूरे प्रचार के दौरान, टेस्ला के शेयर्स प्री मार्केट में 13% ऊपर चल रहे हैं। ट्रंप मीडिया के शेयर्स एक बार तो 60% ऊपर चल रहे थे, अब कुछ 30 या 35% की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो ट्रंप फिलहाल 270 के आंकड़े की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और जो अपने जो समर्थक है उनको संबोधन में भी उन्होंने कहा कि जो वादे उन्होंने किए हैं वो उसे निभा कर दिखाएंगे। तो ट्रंप की जीत के बाद बाजार ने शानदार कमबैक किया है। सेंसेक्स निफ्टी जोरदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 902 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी 271 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में खरीदारी रही। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में तेजी रही। आज के बाजार में सबसे ज्यादा उछाल आईटी शेयरों में रहा, तो वहीं रियलिटी, तेल, गैस, पीएसई शेयरों में भी खरीदारी रही। इसके अलावा एनर्जी, मेटल, ऑटो इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए। ट्रंप की जीत का आईटी सेक्टर को फायदा मिलने की उम्मीद है, ये कहना है कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड सीईओ दीपक शेनॉय का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में दीपक शेनॉय ने ट्रंप की जीत का भारतीय बाजारों पर क्या असर होगा, इस पर बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं।
एक तो आईटी कंपनीज खुद अपने टैक्सेस जो यूएस में पे करेंगे, क्योंकि इनकी सारी जो आईटी कंपनीज है उनके यूएस सब्सिडीज होती हैं, वो यूएस में ही टैक्स पे करते हैं, तो उनके डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट एक होगा और इनडायरेक्ट स्पेंडिंग बेनिफिट होगा, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा स्पेंड कर सकेंगे। लेकिन पॉलिसी क्लैरिटी के बाद आई थिंक वो अनसर्टेनिटी निकल जाती है, और अगले साल के बजट्स में लोग फिर जैसे कंपनीज हैं अपने अगले साल की जब स्पेंडिंग का मतलब प्लानिंग करेंगे, तो आई थिंक आईटी कंपनीज को ज़्यादा एटलीस्ट क्लैरिटी मिलेगी कि आगे बढ़ के क्या होने वाला है। हमारे हिसाब से आईटी कंपनीज को एटलीस्ट टेम्पोररीली थोड़ी सी रिप्रीव मिलेगी, लेकिन उनके जो लार्जर थ्रेट्स हैं, एक वो कि जैसे एआई आके उनके बिजनेस को और आई थिंक एक तरह से कंप्रेस करेगा, क्योंकि जो प्रोजेक्ट अब 200 लोग करते थे, अभी सुनने में आया कि 20 लोग भी कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में मुझे थोड़ा सा नेगेटिव भी लग रहा है कि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ता जाएगा, और अमेरिका में ऑटोमेशन बढ़ेगा क्योंकि वो इलीगल इमिग्रेशन को रोकने की कोशिश करेंगे, और इसकी वजह से ऑटोमेशन पे ज़्यादा ध्यान होगा, एआई पे ज़्यादा ध्यान होगा। तो लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, बट शॉर्ट टर्म में आई थिंक उनके नेक्स्ट ईयर 2025-26 के बजट्स विल बी बेटर इन देयर फेवर। तो आईटी सेक्टर के बाद अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत का कमोडिटी मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है। क्रूड से लेकर बेस मेटल तक की कीमतों पर ट्रंप की नीतियों का असर दिखाई दे सकता है। खबर पर पूरा डिटेल लेकर आ गई हैं हमारी कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता। तो मनीषा जी बताएं, यूएस चुनाव में ट्रंप की जीत का असर कमोडिटी मार्केट पर कैसे पड़ेगा? डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच के बाद हमने काफ़ी इम्पैक्ट आता हुआ देखा यहाँ पर ग्लोबल कमोडिटीज़ एंड करेंसीज पे। ट्रंप ने ये कहा कि कच्चा तेल उनको छोड़ दिया जाए, ये लिक्विड गोल्ड है, और यूएस के पास सबसे ज़्यादा तेल है सऊदी अरेबिया और रशिया से भी ज़्यादा। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना डेट पे ऑफ कर देंगे, टैक्सेस को घटाया जाएगा, और चाइना के पास वो नहीं है जो यूएस के पास है। इस तरह की स्टेटमेंट्स का हमने एक नीजर्क रिएक्शन अक्रॉस प्राइसेस आता हुआ देखा। कच्चे तेल की अगर बात करें तो यहाँ भावों में गिरावट देखने को मिली। यूएस इन एनी केस यहाँ पर रिकॉर्ड कच्चा तेल प्रोड्यूस कर रहा है, और जिस तरह से हमने यहाँ पर अंडर इन्वेस्टमेंट्स आते हुए देखी, काफ़ी सारे यहाँ पर स्ट्रेन्स भी थे, वो शायद अब ट्रंप के आने से दूर होते हुए नजर आएंगे, और थोड़ी सी बेरिशनेस यहाँ पर प्राइसेस में बन सकती है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप डॉलर इंडेक्स देखें तो 14 हफ्ते के हाईज पर यहाँ पर कारोबार है, जिसका असर हमने रुपए में आता हुआ देखा, जो कि रिकॉर्ड लोज पे बना। डॉलर इंडेक्स में तेजी का असर यहां पर कमोडिटीज पर भी आया, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली थी, लेकिन बिटकॉइन में यहां पर जोरदार तेजी आई। ऑल टाइम हाईज $75,000 के हमने यहां पर बनते हुए देखे। जहां तक मेटल्स की बात है, यहां पर भी मुनाफा वसूली रही। सोने और चांदी दोनों में एक तो डॉलर की तेजी, और दूसरा क्योंकि अब जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेकर अनसर्टनिटी थी वो हटती हुई नजर आई, तो वो जो प्रीमियम था प्राइसेस में वो हमने जाता हुआ देखा। यही हाल काफ़ी हद तक मेटल्स का भी है। चाइना के साथ यूएस के संबंध अब कैसे रहेंगे, किस तरह के टैक्सेस टैरिफ्स लगाए जाएंगे, उसका कुछ कंसर्न है बाजार में, जिसकी वजह से 2% तक की गिरावट कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम इन सभी मेटल्स में देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद आपको ये बात दिला दें कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस तो हो चुके हैं, आगे किस तरह की नीतियां बनती हैं उसके ऊपर बाजार की नजर रहेगी। लेकिन अब कल यूएस की फेड मीटिंग है, चाइना की कांग्रेस मीटिंग जारी है, जहां से कुछ स्टिमुलस मेजर्स की एक्सपेक्टेशन भी है। तो अब इस हफ्ते में ये दो मेजर इवेंट्स हैं जिन पर बाजार की नजर है, और कमोडिटीज और करेंसी बाजार अब यहां से क्यूज लेते हुए नजर आएंगे। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के क्या मायने हैं, और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत के साथ रिश्तों पर क्या होगा असर? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। देश के लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। गूगल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर्स 10 करोड़ के पार हो गए हैं। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल सितंबर में अपने प्रतिद्वंदी इकोनॉमिक टाइम के मुकाबले 31% बड़ा है। मनी कंट्रोल के पेड व्यूज भी ईटी के मुकाबले 40% ज्यादा है। कॉमस्कोर के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मनी कंट्रोल में लोग टाइम स्पेंड भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कहीं ज्यादा करते हैं। सितंबर में करीब 407 मिलियन मिनट्स टाइम स्पेंड के साथ मनी कंट्रोल सबसे आगे है। प्रीमियम सर्विस प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो के अभी हाल ही में 10 लाख सब्सक्राइबर पार हुए हैं। आपको बता दें, मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 का हिस्सा है।
चलिए अब खबरें चुनावी दंगल की। मुंबई के माहिम से चुनाव लड़ रहे एमएनएस नेता राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने कहा है कि वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर भारतीयों के बीच राज ठाकरे की छवि पर अमित ने कहा कि वो लोग किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मराठी मानुष और हिंदुत्व की लड़ाई जारी रहेगी। एक इमेज बन गई है एमएनएस की या फिर राज ठाकरे जी की कि दे आर अगेंस्ट द नॉर्थ इंडियंस, जैसे 2008 में हुआ था, 7 हुआ था। तो वो छवि आप कैसे सुधारोगे एज अ यंग लीडर ऑफ एमएनएस? सुधारने की बात नहीं है। अगर आप साहब के इंटरव्यूज या स्पीचेस आप गौर से सुनेंगे तो ऐसी छवि लोगों ने बनाई है, मतलब सामने ओपोजिशन ने बनाई होगी या, पर साहब किसी के भी खिलाफ नहीं है। वो मराठी भाषा के मतलब जो भाषा है उसके फॉर है। अगर कोई आके आपके प्रांत में आके आपके लोगों को अगर तकलीफ देगा तो हमेशा साहब खड़े रहेंगे। इतना ही कहना है। मराठी मानुष, मराठी मुद्दा रहेगा, वो हमेशा रहेगा। और धर्म की बात करें तो हिंदुत्व भी मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो हिंदुत्व है या मराठी है, एक आपकी भाषा है और एक आपका धर्म है। एक को भी आप इक्वेशन से निकाल दो तो आपकी आधी आइडेंटिटी किधर तो निकल जाती है। तो मुझे लगता है ये दो तो रहेंगे। वहीं कांग्रेस की पूर्व सांसद और सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त इस बार बांद्रा वेस्ट में प्रचार कर रही हैं, लेकिन अपने पारिवारिक मित्र बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी के लिए बांद्रा ईस्ट में प्रचार नहीं करेंगी। हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा से खास बातचीत में प्रिया ने कहा कि जिशान इस बार कांग्रेस की जगह एनसीपी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वो जिशान के लिए प्रचार नहीं करेंगी। तो क्या इसीलिए आप जिसान के लिए कैंपेन नहीं करेंगे क्योंकि वो महायुति के कैंडिडेट हैं? जी, मैं देखिए, मैं कांग्रेस में हूँ। आई एम अ कांग्रेस पर्सन एंड ऑलवेज बी अ कांग्रेस पर्सन। अगर मैं पॉलिटिक्स से भी दूर हूँ, आई विल स्टिल बी अ कांग्रेस पर्सन। सो आई फील जब बाबा भी वो पार्टी में थे, बाबा वॉज ऑल्सो इन दैट पोजिशन, बट आई थिंक एक मैटर ऑफ रिस्पेक्ट होता है, मैटर ऑफ होता है कि वेयर आई विल नॉट वर्क अगेंस्ट एनीबडी in any way. You know, Baba has been a very integral part of the Congress party for 40 years. और जीशान भी हमारे पार्टी से ही उम्मीदवार था, हमारी पार्टी से ही जीता था। So, wish him all the best. भोजपुरी, मगही और मैथिली की सबसे बड़ी गायिका शारदा सिन्हा का कल रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थीं और एम्स में उनका इलाज चल रहा था। 1952 में बिहार के सुपौल में जन्मी शारदा सिन्हा 72 साल की थी। ये एक मार्मिक संयोग है कि छठ गीतों के लिए सबसे ज्यादा मशहूर शारदा सिन्हा का निधन छठ पर्व के दौरान हुआ है। उन्हें शादी विवाह के संस्कार गीतों, लोकगीतों और बॉलीवुड के गानों के लिए भी जाना जाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए इसे एक अपूर्णीय क्षति बताया है। शारदा सिन्हा को पद्मश्री, पद्म भूषण सम्मान दिए गए हैं। बिहार सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने की घोषणा की है। वहीं सोनू निगम, मनोज तिवारी, रवि किशन समेत कला और फिल्म जगत की हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार कल सुबह 8 बजे पटना के गुलाबी घाट पर किया जाएगा। तो छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। छठ पर्व में 36 घंटे का लंबा उपवास होता है। तो क्या होता है ऐसे लंबे उपवास का हेल्थ बेनिफिट, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर की। दिल्ली में आज औसत AQI 351 रहा, वहीं कई इलाकों में AQI 400 के पार निकल चुका है। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की ताज़ा रिपोर्ट में प्रदूषण को लेकर कई डाटा सामने आए हैं। हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने पर्यावरण विद सुनीता नारायण से इस पर खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। मैम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस की है आपने। डेटा गवर्नमेंट का है लेकिन एनालिसिस आपकी है। जब भी पोल्यूशन होता है इस बात पे चर्चा होती है कि कारण क्या है, फैक्टर्स क्या हैं। आपने तमाम फैक्टर्स को एनालाइज किया जो IITM के डेटा है उसके आधार पे। पराली पे हमेशा ब्लेम किया जाता है, राज्यों के बीच ब्लेम किया जाता है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है? क्या पॉलिसी रिकमेंडेशन आप दे रहे हैं? हमारी एनालिसिस ये कहती है कि सब प्रदूषण, सब सरकारें, सब लोग, सब स्रोत
प्रदूषण के कारण है। तो ये मान के चलिए कि आप नहीं कह सकते कि आपके कारण है या किसी और के कारण है, सबके कारण है। ये पहला लेसन है और आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट निकल के आता है कि अगर आप सरकारी आंकड़े देखें तो 1/3 प्रदूषण जो है वो दिल्ली का अपना है, 1/3 दिल्ली के बाहर से आता है। मगर ये भी याद रखिए, जब मैं नोएडा का देखूंगी तो नोएडा के अंदर भी 1/3 बाहर से आएगा और उसके बाद कोई 1/3 है जिसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कहां से आ रहा है, मगर उसमें ये क्लियर है कि 8% ही पराली से है। मगर याद रखिए, और ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान से कहिए क्योंकि ये आंकड़े हैं आपके 9 नवंबर तक। ये हो सकता है कि इसके बाद पराली और जले और ये भी हो सकता है कि हवाएं जो अभी तक पाकिस्तान की तरफ जा रही है वो दिल्ली की तरफ आए। हवा के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है भाई, ठीक है? तो अगर वो आएगी, ये याद रखिए कि आपका जो प्रदूषण का सोर्स है उसके ऊपर जो आपका कंट्रोल खाली आपके प्रदूषण के ऊपर हो सकता है, उसको कम करिए। लोकल सोर्सेज में लगभग 50% आप कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, सरकार के अपने आंकड़े दिखा रहे हैं कि देखिए लोकल एयर पोल्यूशन में सबसे ज्यादा जो प्रदूषण है वो है किसी चीज को जलाने के कारण। आप ईंधन जलाते हैं गाड़ी में तो ट्रांसपोर्ट 50%। हमारी डेटा ये भी दिखा रही है कि गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है दिल्ली में। दूसरी तरफ से एनसीआर एक बड़ा क्षेत्र बनता जा रहा है, तो दिल्ली के अंदर लोग आते हैं, दिल्ली के लोग जाते हैं, एक एरिया है और यहाँ का जो यातायात है खाली एक मेट्रो है, बाकी का कोई और साधन नहीं है जिससे अगर आप गुड़गांव में काम करते हैं आप जा सकते हैं, आप खाली गाड़ी ले सकते हैं। तो इन चीजों से कंजेशन बढ़ रहा है, कंजेशन के कारण फिर पोल्यूशन बढ़ता है। तो ये सारे बिल्कुल स्पष्ट हैं कि ये आपको एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ये एक विंटर में आप फिक्स नहीं कर सकते। स्कोडा ने आज एसयूवी स्कोडा काइलैक को लॉन्च किया है। कुशाक और कॉडियाक के बाद एक कंपनी की तीसरी एसयूवी कार है। नई कार काइलैक का नाम कैलाश पर्वत के नाम पर रखा गया है। कंज्यूमर्स 2 दिसंबर से कार की बुकिंग शुरू करवा सकते हैं और जिसकी डिलीवरी जनवरी से मिलेगी। क्या कुछ खास फीचर्स है, बता रहे हैं सहयोगी कुमार संजय। स्कोडा की फाइनली कॉम्पैक्ट एसयूवी काइलैक लॉन्च हो गई है और कीमत है 7,89,000, यानी कीमत के मामले में जितनी भी गाड़ियां कॉम्पैक्ट सेगमेंट में सबसे सस्ती है। लेकिन इसका जो फाइनल प्राइस है वो जनवरी में अनाउंस होगा। कंपनी इसकी बुकिंग 2 दिसंबर से शुरू कर देगी। लेकिन उससे पहले जान लीजिए इस गाड़ी को जो MQB प्लेटफॉर्म है स्कोडा के, जिस पर कुशाक बना है, उसी पर इसे बनाया गया। इसी वजह से दिखने में बहुत कुछ सिमिलर है कुशाक की तरह। लेकिन इसमें जो इंजन लगा है 1 लीटर का पेट्रोल इंजन है जिसका पावर आउटपुट है 115 bhp और इस काइलैक में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक वो भी टॉर्क कन्वर्टर इसमें गियरबॉक्स दिया गया और इसमें 2 ड्राइव बोर्ड मिलते हैं, एक है नॉर्मल और दूसरा है स्पोर्ट। लुक की बात करें तो सामने का जो लुक है जो काफी अट्रैक्टिव है और यहाँ पर आपको LED हेडलैम्प, फॉग लैम्प, साथ ही DRL दिया गया है। और स्कोडा की हमेशा से जो इसका डिजाइन लैंग्वेज की खासियत है सिंपल और क्लेवर। पीछे का जो चीज है उसे भी सिंपल रखा गया है, सुंदर रखा गया और इसका जो टेल लैंप है उसका भी डिजाइन एकदम स्कोडा की जो डिजाइन लैंग्वेज है उससे मेल खाती है। और जो इसका बूट स्पेस है उसकी जो साइज है 446 लीटर। आप देख सकते हैं पहले से यहाँ पर बैग रखा हुआ है, इतना सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है उसका जो साइज है ग्राउंड क्लियरेंस का, यानी जो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ, उसका साइज है 189 mm। और इस स्कोडा की जो काइलैक है उसका जो मुकाबला है होंडई की वेन्यू, टाटा की नेक्सॉन, किया की सोनेट और मारुति की ब्रिजा से है। इस बार दिवाली पर लॉन्ग वीकेंड के बावजूद होटल्स और एयरफेयर महंगे होने की वजह से घूमने फिरने वाले कम निकले, लेकिन ईयर एंड पर आप देश विदेश में घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। कैसे, देखिए केतन जोशी की यह रिपोर्ट। दिवाली पर एयर फेयर 2 से 3 गुना और होटल रेट 30 से 50% बढ़े हुए थे। लेकिन अब क्रिसमस, ईयर एंड और फरवरी तक आपके पास बजट में देश विदेश घूमने के कई विकल्प हैं।
अगर देश में घूमना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति 50,000 में आप कश्मीर, दार्जिलिंग, केरल, असम या शिमला मनाली का पैकेज हासिल कर सकते हैं, वो भी हवाई किराए, 4 स्टार स्टे और साइट सीइंग के साथ। वहीं हरिद्वार ऋषिकेश का पैकेज सिर्फ 35,000 में मिल सकता है। विदेश की बात करें तो 75,000 प्रति व्यक्ति तक में आप थाईलैंड, बाली, वियतनाम, मलेशिया घूमने जा सकते हैं, जबकि 70,000 में सिंगापुर, 65,000 में दुबई और 50,000 में श्रीलंका जा सकते हैं। अभी जैसे अहमदाबाद से बात करते हैं तो हॉट डेस्टिनेशन वियतनाम है, बाली है, सिंगापुर है, मलेशिया है, श्रीलंका है, दुबई, अबू धाबी है और थाईलैंड जैसे कंट्री जो है एशियाई कंट्रीज, उसमें हमें थ्रू आउट ईयर एक फ्लैट रेट में घूमने को मिलता है, जहाँ पे हम 5 नाइट 6 डे और 6 नाइट 7 डे के पैकेज लेके फैमिली के साथ घूम सकते हैं। दिसंबर से फरवरी के बीच आने वाली छुट्टियों के लिए लोग अभी से बुकिंग करवा रहे हैं, इसलिए आगे पैकेज महंगे हो सकते हैं। एक्चुअली हम दिवाली में फैमिली के साथ घूमने जाने वाले थे, लेकिन बजट बढ़ गया था, इसलिए हम इस क्रिसमस में जाने वाले कश्मीर में फैमिली के साथ। मिडिल क्लास परिवारों में घूमने का चलन बढ़ने से टूरिज्म इंडस्ट्री को अच्छी आमदनी की उम्मीद है। दिवाली के दौरान घूमना फिरना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अगर अभी आप बुकिंग करवाते हैं तो आने वाले 2 महीने की छुट्टियों में आप मनचाही जगह पर अपने बजट में वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं हमारे खास आयोजन स्टार्टअप गुरुकुल के बारे में। अगर आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो शायद इससे बेहतर कोई समय नहीं है। एफएनओ गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप्स गुरुकुल। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना नाम बना चुके एंटरप्रेन्योर और वेंचर निवेशक आपको अपने अनुभव के जरिए समझाएंगे कि कैसे भारत में आप अपना खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं, एक आइडिया को कैसे आप एक सफल स्टार्टअप का रूप दे सकते हैं, कैसे आप अपने कारोबार को निवेशक, अपने पार्टनर और इकोसिस्टम के दूसरे स्टेक होल्डर के सामने पेश करें। कारोबार के शुरुआती दिनों में पूंजी कहां से लाएं, बाजार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले किस तरह की तैयारी की जरूरत है। तो अगर आपको अपने स्टार्टअप का सपना साकार करना है तो इस लिंक पर रजिस्टर जरूर करें।